A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I hope everybody can see the slides. Slide nazar aa raha hai beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay beta. Today we will be talking about bricks and ceramics. Bricks and ceramics. These are some ceramic tiles which we can use in our buildings, washrooms, and other places. These are the topics which we will discuss: ceramics and bricks. First, we will talk about the history and evolution of ceramics. Then we will talk about the manufacturing of ceramics, how we can make the ceramics. Then we will talk about the properties and applications of ceramics in buildings. Then we will talk about the history and evolution of bricks, properties and application of bricks, brick dimensions, manufacturing and classification of bricks. So all these are the topics which we will discuss in our today lecture. So first let's talk about the ceramics. Ceramics materials are inorganic, non-metallic materials and things can be made from them. Ceramic materials are non-metallic and inorganic. I hope you people remember this inorganic and non-metallic materials. Yeah, कुछ याद है किसी को? केमिस्ट्री में आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा. यस क्या होते सर हैं बेटा? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? नॉन मेटालिक जो कंडक्शन ना कर सकते नॉन मेटालिक में क्या होता है बेटा? इनऑर्गेनिक होते हैं जल जी बेटा क्या होता है इसमें? सर जी नॉन मेटालिक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती, कंडक्शन नहीं कर सकते, और इनऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन होता है. हमने इस तरह पढ़ा. तो हम उसको इनऑर्गेनिक को हम कहते हैं गैर नामियाती, और उसको कहते हैं ये नॉन मेटालिक को गैर दाती. क्लास ऑफ कंपाउंड्स नॉट हैविंग the first one inorganic class of compounds not having a carbon basis, and the next one is non-metallic materials and things can be made from them, and then you can make from this inorganic materials and non-metallic materials we can make different things. You can see over here we can make such type of materials from these materials. They may be crystalline or partly crystalline. क्या होते हैं बेटा? या तो crystalline form में होते हैं या partly crystalline form में होते हैं. They are formed by the action of heat and subsequent cooling. कैसे हम इससे मटेरियल बना सकते हैं बेटा? आप इसको हीट देते हैं और फिर उसकी कूलिंग करते हैं, तब आपको इससे मटेरियल मिलते हैं. Most ceramics are compounds between metallic and non-metallic elements for which the interatomic bonds are either totally ionic bond. I hope you remember the ionic bond and covalent bond. Yeah. Ionic bonding is the complete transfer of valence electrons between atoms. It is a type of chemical bond that generates two oppositely charged ions. So I hope you remember this from chemistry, or if you have forgotten, when you go back to your books, you can read it again. R or RR are predominantly ionic but having same covalent character. Now what is covalent bond or covalent character? A covalent bond, also called a molecular bond, is a chemical bond that involves the sharing of electron pairs between atoms. So this is about the chemical sides of this topic. You have to remember the ionic bond and the covalent bond. Most of the ceramic materials compounds are compounds between metallic and non-metallic elements for which the interatomic bonds are either totally ionic bond or are predominantly ionic but having same covalent character. So this is about the bonding. The next is clay was one of the earliest material used to produce ceramics. किस चीज से बनते थे पहले ये ceramics? Clay से. But many different ceramic materials are now used in domestic, industrial and building products. लेकिन आजकल और भी दूसरे materials इसके साथ मिलके या उसे हम ceramic material बना सकते हैं. A wide-ranging group of materials whose ingredients are clays, sand and feldspar. ये material अगर मौजूद हो soil में, so from this we can make the ceramics. The term ceramics comes from the Greek word. कहाँ से आया है बेटा? ये ग्रीक वर्ड है और केरामिकोस, which means जिसका मतलब है
बर्न स्टफ आर ड्रिंकिंग वेसल, वो बर्तन या वो सामान जिसको आपने बर्न किया हो, या पीने के बर्तन। Indicating that desirable properties of these materials are normally achieved through a high temperature heat treatment process called firing। क्या करते हैं बेटा, इसको पहले पहले आप फायरिंग करते हैं इसकी, और फिर उसकी कूलिंग करते हैं। बट was later applied by the Greeks to all fire clay products। लेकिन बाद में क्या कहा उन्होंने, इस पहले इसको कहते थे कि बर्न स्टफ और ड्रिंकिंग वेसल्स को ये कहते थे, सिरामिक्स और केरामिकल्स। लेकिन बाद में जितने भी प्रोडक्ट्स आप फायर जितने भी क्ले प्रोडक्ट्स हैं और फायर क्ले प्रोडक्ट्स, इन सब को वो सिरामिक्स या केरामिकल्स कहते थे। डू यू नो कुम्हार? कुम्हार जानते हैं आप लोग? जी बेटा, यस सर। पश्तो में क्या कहते हैं उसको? नो सर। जी, कुम्हार को पश्तो में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीवन इन द क्लास? जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से सर पॉटर जो कहते हैं सर, उसको इंग्लिश में कहते हैं सर, पुख्तों की पता नहीं। पश्तो में लगता है सर कुलाल कहते उर्दू हैं। में कुम्हार बोलते हैं, पश्तो में कुलाल बोलते हैं। जानते हैं कुलाल को? यस सर, कुलाल। या कुलाल मट्टी के बर्तन बनाते हैं। Actually this ceramics, this is the work of Kulal, yeah. The first American ceramic society was found in 1899. Now we are talking about the history of ceramics. तो कब बनी थी पहली सोसाइटी? 1898 में। The founders were these guys. You can it is not necessary that you remember all these names. Okay, Elmer, Samuel, Albert, Edward, Willard, Ellis, Hall, William, and Carl, and so on. These were the guys who established this society. They came together to share ideas and scientific methods concerning ceramics. ये लोग आपस में बैठ गए और उन्होंने अपने 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 आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर किए अबाउट सिरामिक्स। द फाउंडर्स वर्क इज, इसमें कौन कौन से लोग थे बेटा? इसमें टीचर्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे जिनके अपनी इंडस्ट्रीज थी, इंजीनियर्स भी थे, जियोलॉजिस्ट भी थे मटेरियल साइड पे, केमिस्ट भी थे केमिस्ट्री साइड से, एंड आर्टिस्ट भी थे साथ साथ, जो 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 इस फन के माहिर थे, जिससे जो लोग ये बर्तन बना सकते थे। टुगेदर दे फाउंड इट easier and better ways to make ceramic pieces. Together they found it. उन्होंने combine क्या find किया? Better ways to make ceramic pieces more easily. Rookwood Academy, ये भी एक academy थी. This academy was made up of women who specialized in making vases or jugs, teacups, plates, etc. and creating complicated design on the ceramic ware. रुकवुड एकेडमी ये खवातीन ने बनाई थी और वो मुख्तलिफ डिज़ाइन के कप्स बनाते थे, जग्स बनाते थे, प्लेट्स बनाते थे और मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाते थे सिरामिक्स के। A woman named Maria Langworth Nichols Storer founded the Rookwood Academy in the late 1870. कब बनाई थी उसने? Late 1870 में। The Rookwood Academy was best known for their design of flowers की वजह से, नेटिव अमेरिकन पोर्ट्रेट्स की वजह से, लैंडस्केपिंग की वजह से, एंड जापानीज थीम्स की वजह से वो फेमस थे। एंड दिस सोसाइटी वाज लोकेटेड इन सिंसिनाटी, ओहायो। डू यू नो ओहायो एंड सिंसिनाटी? वेयर इज दिस? ये कहाँ पे है बेटा? नो सर। नो? एनीवन इन द क्लास? सर अमेरिका में। किसी को भी पता नहीं है बेटा? स्विट्जरलैंड यूएस। बस ओहायो इज इन यूएसए। ओके, आपने सिंसिनाटी चैंपियनशिप का नाम सुना होगा, सिंसिनाटी और सिंसिनाटी। टेनिस का है कि कौन सा है? स्क्वाश का है, कौन सा है? आर यू पीपल इन द क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस मेरे सर। ख्याल में तो कुछ और काम कर रहे हैं, सो रहे हैं या क्विज के लिए तैयारी कर रहे हैं। No, sir.
Okay, let's talk about this Kumhar work. So potter's wheel, this is used for creating round ceramic ware. ये आपको नजर आ रहा है, this is potter wheel. ये पहिया ये घूमता है, अभी आप वीडियो में देख लेंगे इसको, and then you can make the things from clay. Trimming excess clay from a ceramic piece, क्या होता है इसमें, आप ट्रिम करते हैं, हटा देते हैं, जुदा करते हैं, अलग करते हैं एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है. Even amount of glaze on the ceramic ware, with the help of this potter wheels you can spray, you can spread. आप क्या कर सकते हैं कि आप जो कलर्स होते हैं मुख्तलिफ इनके डेकोरेशन जो होती है वो आप इस बर्तन पे लगा सकते हैं. The first wheel was developed around 3000 BC, 3000 कबल मसीह. हाँ, इससे पहले this is before क्या बोलते हैं इसको बेटा, Before Christ. Before Christ. या 3000 साल उससे पहले उन्होंने बनाई थी. The wheel began as a platform of wood that you could easily turn by a simple push. इसके नीचे ये जो प्लेटफॉर्म है, ये लकड़ी का, ये टिम्बर का ये जो प्लेटफॉर्म बना है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं आराम से, और फिर आप इसकी ट्रिमिंग और बाकी काम उस पर कर सकते हैं. The next wheel was developed around 2000 BC. The first wheel was more advanced because it turned on an axle and only needed a push or a kick. Now we have electric wheels that only requires the push of a pedal. This one you can see, this one, and this is the work how you can make the materials from ceramics. Okay, so we will talk about hand building. History of ceramics is a technique. The hand building is a technique used for irregular shaped ceramics. अगर इस तरह का irregular shaped ceramic materials आपने बनाना हो, उसके लिए फिर आप hand mixing technique use कर सकते हैं. You can make these parts first and then you can combine with some materials, forming long tiles with your hands, then stacking or combining them upon one another, and then pinching them or blending them or mixing them or combining them together to form the ceramic wheel. So this is all about this ceramics, how you can do this. Let's talk about the manufacturing of ceramics, how we can manufacture the ceramics. So 4 processes are involved in making the ceramics: shaping, drying, firing, and glazing. Sometimes manufacturing of ceramics consists of 4 basic stages. Number 1 is the shaping of the ceramics. Number 2 is drying of the ceramics. And number 3 is firing of the ceramics. And the 4th is glazing of the ceramics. So we will discuss all these one by one. Sometimes the glaze is applied before firing, that is called once firing, and sometimes the item is fired, then the glaze or the coat or the color is applied, and then the item is refired twice firing. ये जो glazing है, this is also called coloring, और इस पे आप जो मुख्तलिफ पेंट्स बनाते हैं, मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं, मुख्तलिफ टेक्सचर बनाते हैं, ये आप पहले भी कर सकते हैं. Sometimes the glaze is applied before fire, और कभी कभार हम एक दफा उसकी फायरिंग करते हैं मटेरियल की, फिर उसके बाद उस पे कलर और कोटिंग अप्लाई करते हैं, और उसके बाद दोबारा उसकी फायरिंग करते हैं. It is called twice firing. We will discuss all of these one by one. Step number 1. Everybody can hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Step number 1 Yes, is sir. shaping of the ceramics. Yes, sir. Ingredients are mixed together and soaked in water. The ingredients are mixed together. जिस चीज से आप ये सेरामिक मटेरियल बनाते हैं, ये जो सारे मटेरियल से सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या करते हैं, तो पानी में आप पानी उसमें ऐड करते हैं और फिर कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं. वाटर इज स्क्वीज्ड विद अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट 20%. जो एक्सेस वाटर है इसमें, उसको आप क्या करते हैं, उसको स्क्वीज आउट करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि बाहर निकाल दे और अप टू 20% इसमें मॉइस्चर कंटेंट रह जाए. And the mixture is shaped appropriately. फिर क्या करते हैं बेटा, उस मिक्सचर को आप properly shape. This is either done by forcing the clay into a mold. ये कैसे आप कर सकते हैं बेटा, या तो मोल्ड आपने पहले से बनाया, उसमें आप ये मिट्टी डालते हैं और उस शेप का मटेरियल आपको मिल जाता है, or by pressing a mold, या
आपने जो मटेरियल बनाया, आपने जो सेरामिक मटेरियल बनाया, उसमें आप मोल्ड को प्रेस करते हैं, उसके अंदर आप उसको प्रेस करते हैं अ मोल्ड इनटू द क्ले व्हाइल इट इज स्पिनिंग ऑन अ टर्न टेबल। जब कर रहा हूं तो आपको ये मटेरियल या शेप या ये चीज मिल जाती है। प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या है इसके बेटा? टेप कास्टिंग टेक्निक है, स्लिप कास्टिंग टेक्निक है और इंजेक्शन मोल्डिंग है। टेप कास्टिंग टेक्निक में क्या होता है? टेप कास्टिंग हैज बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस 10 लेयर्स ऑफ सेरामिक्स। अगर 10 लेयर्स के बर्तन आपने बनाना हो तो आप यू कैन यूज दिस टेप कास्टिंग। That can be used as single layers or can be stacked and laminated into multi-layer structures। क्या कर सकते हैं इसमें? आप एक सिंगल लेयर का भी मटेरियल बना सकते हैं, मुख्तलिफ लेयर्स आप एक दूसरे के ऊपर भी लगा सकते हैं, स्टैक कर सकते हैं, और मल्टी लेयर के स्ट्रक्चर्स भी आप बना सकते हैं इस टेक्निक से, टेप कास्टिंग टेक्निक से। स्लिप कास्टिंग में क्या होता है बेटा? वन ऑफ द मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड्स of manufacturing ceramics into complex shapes। अगर complex shapes आपने बनाने हो तो you can go for this slip casting method that we use today is called slip casting। आजकल जो मेथड यूज होते हैं that is called slip casting। इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है बेटा? ceramic injection molding is a manufacturing process used to mass produce precision ceramics components with complex geometries। complex geometries में आपने अगर मटेरियल्स बनाना हो तो that can be used by injection moldings or ceramic injection molding। The next one is beta tape casting, also called doctor blading and knife coating, and this is the slip casting complete details। I have written something over here, read it by yourself। समझ आ रहे हैं बेटा? Yes sir। Yes sir। Yes, sir। ये तीन मेथड्स है, टेप कास्टिंग है, स्लिप कास्टिंग एंड इंजेक्शन मोल्डिंग है। टेप कास्टिंग में आपने अगर 10 लेयर्स के बर्तन बनाना, लेट्स से कप आपने बनाना हो या इस भी 10 लेयर्स के बर्तन बनाना हो, यू कैन गो फॉर दिस मेथड। स्लिप कास्टिंग, दिस इज द मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेरामिक्स। कॉम्प्लेक्स शेप्स की चीजें आपने बनाना हो, यू कैन गो फॉर दिस मेथड। और इंजेक्शन मोल्डिंग में ये क्या, इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड टू मास प्रोड्यूस precision or precise ceramic components with complex geometry, so then you can go for this method। The details are written over here, you will when you go back to your books just read all these things। I have also explained over here, लेकिन आप इसको खुद पढ़ ले, that is very easy। So we were talking about the shaping। the ingredients are mixed together and soaked in water। I hope we have discussed this, yeah। नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग। पहले में आपने उसका शेप बना दिया, मोल्ड बना दिया, शक्ल बना दी। समझ आ रही है बेटा? Yes sir। किसको समझ नहीं आ रही है? ये बेटा समझ किसको नहीं आ रही है? सबको समझ आ रही है? Yes sir। Yes sir। Yes, sir। Yes sir। Yes sir। ओके गुड, माशाल्लाह। ड्राइंग, देन इन द नेक्स्ट स्टेप, पहले अभी आपने एक बर्तन बनाया, कप बनाया है या बर्तन बनाया या कोई शाफा। Yes sir। ये मंगी तो पूछ दो किस हुई? मटका। मटका, ओके। आपने मटका बनाया है या कोई और चीज आपने बनाई है? So when we will come back to the university, the CR, you have to remind me। फिर दफ्तर में कुछ बर्तन पड़े आपके सीनियर्स लेके आए थे, so I will try to show those बर्तन to you people, okay? So drying process, the items are dried slowly in an oven in order to lose all of the water। इसके बाद क्या करते हैं बेटा? ओवन में आप उसकी ड्राई करते हैं ताकि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है before the wear or the product or बर्तन can be fired to high temperature, it must first be dried to remove water। फायरिंग से पहले आप क्या करें? सारे पानी को रिमूव करें।
दिस रिजल्ट्स इन अ 3 to 7% वॉल्यूम रिडक्शन। अभी अगर आप पानी निकालते इसे, इसको ड्राई करते तो इसका वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि पहले इसमें पानी मौजूद था, अभी इसकी श्रिंकेज होगी। वाटर इज एडेड टू इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ द क्ले। प्लास्टिसिटी ऑफ द क्ले को बढ़ाने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं। दिस वाटर इज स्टिल प्रेजेंट इन द बॉडी आफ्टर इट हैज बीन फॉर्म। जब एक दफा आपने बर्तन बनाया है, वेसल बनाया है, कोई मटेरियल उससे बनाया है, इसके बॉडी में वो पानी मौजूद होता है, and can be removed only slowly as it must migrate through the spaces between the particles of clay, silica and feldspars to evaporate from the surface. Yes, that is very clear. During the drying period, the body will shrink by a significant amount. जैसे कि मैंने बता दिया कि 3 to 7% इसका वॉल्यूम कम होगा, so this is because of the shrinkage. Shrinkage stops when the particles come into contact. जब ये particles सारे दूसरे के करीब आ जाएंगे तो ये shrinkage stop हो जाएगा. However, if drying is not uniform, अभी अगर आप drying जो करते हैं वो uniform नहीं होता है throughout the body of the vessels, और जो बर्तन है वो अगर throughout uniform नहीं होगा तो क्या होगा? Stresses can build to the extent that the body warps or destroys or damage or possibly cracks. अभी अगर आप let's say ये आप एक बर्तन आपने बनाया है, ये, और इसकी अभी आप क्या करते हैं, इसकी ड्राइंग करते हैं। इस जगह को ज्यादा हीट मिलती है, इस जगह को कम हीट मिलती है, इस जगह को ज्यादा हीट मिलती है, तो इसके दरमियान में दिस इज नॉट यूनिफॉर्म हीटिंग एंड देयर आर चांसेस ऑफ डैमेजिंग दिस पोर्शन, ऑफ सेपरेटिंग दिस पोर्शन फ्रॉम दिस वन एंड दिस पोर्शन फ्रॉम दिस वन एंड सो ऑन। तो आप कोशिश करेंगे कि जो ड्राइंग आप करते हो वो यूनिफॉर्म हो, पूरे बर्तन को यूनिफॉर्मली आप ड्राई करें। ओके, द नेक्स्ट वन, दिस इज द प्रोसीजर। सबसे पहले आप क्या करें कि प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स, मटेरियल आप पाउडर फॉर्म में वो करें, फिर पानी ऐड करें, फिर उसके बाद आप उससे शेप बनाएं, फिर उसके बाद उसकी आप ड्राइंग करें, और उसके बाद ये आपके पास फायरिंग वाला जोन है, इसकी फायरिंग करें। ये आपको ये शुआएं नजर आ रही है फायरिंग की। सो यू हैव द फाइनल प्रोडक्ट। इसके लिए अपनी भट्टी टाइप की होती है, केलन, उसमें आप इन बर्तन को रखते हैं, उसमें हाई हीट जोन होते हैं और कम हीट के जोन होते हैं। So you can then shift the materials from the low heat portion to the high heat portion, and finally you can have the final product. The items are dried slowly, and we have talked about this. The next one is the firing. The item is heated to temperatures up to 1170 degrees C. कितने टेम्परेचर तक आप इसकी फायरिंग करेंगे? देखिए बेटा, आपने शेपिंग कर दी, शेप बना लिया आपने, फिर आपने ड्राई किया, उसको पुश किया, फिर उसके बाद अभी आप फायरिंग कर रहे हैं, केलन में उसको रख के आप उसकी हीटिंग कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द क्ले अंडरगोज सम केमिकल चेंजेस। इतने हाई हीट पे आप इसको जब बर्न करते हैं तो इसमें केमिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, एंड द सिलिका एंड फेल्सपार अंडरगो फिजिकल चेंजेस, और फिजिकल चेंजेस भी इसमें आ जाती है। वंस ड्राइंग इज कंप्लीट द बॉडी इज रेडी फॉर फायरिंग। जब एक दफा ये ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो इट इज रेडी फॉर फायरिंग। इसको आप फिर हीट दे सकते हैं, इसकी हीटिंग कर सकते हैं। ऑल अनग्लेज्ड आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स, वो शक्ल, वो बर्तन जो आपने बनाए हो, जो जिसको आपने कलर नहीं दिया हो, एंड मेनी ग्लेज्ड वन, और काफी सारे ग्लेज्ड वन जिसको आपने कलर दिया हो, आर फायर्ड यूजिंग द वंस फायरिंग मेथड। उसको कैसे आप हीट देते हैं, हीटिंग उसकी कैसे करते हैं? वंस फायरिंग मेथड से आप उसकी हीटिंग करते हैं। However, a small number of articles are fired twice in a method, whereby the glaze is applied after the first firing or the first biscuit firing or biscuit kiln, and is fixed on by a second glazed firing or glazed kiln. बेटा आपको मैंने बताया था कि कभी कभार हम फायरिंग से पहले इसकी ग्लेजिंग करते हैं, कलर दे देते हैं और फिर उसकी फायरिंग करते हैं। कभी कभार हम एक दफा इसकी फायरिंग कर लेते हैं, इसकी हीटिंग कर लेते हैं, हमारे पास बर्तन बन जाता है। शेप जो भी शक्ल हमने बनाना होता है, जो भी कंपाउंड हमने बनाना होता है, जो भी टेक्सचर हमने बनाना होता है, जो भी वेसल्स हमने बनाता हो, जग्स हमने बनाना होता है, जो भी शेप हमने बनाना होता है, उस पे हम कलरिंग नहीं करते, उसकी फायरिंग करते हैं, और फायरिंग के बाद उसकी कलरिंग करते हैं। कुछ को हम फायरिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसकी कलरिंग करते हैं और फिर दोबारा उसकी फायरिंग करते हैं, तो उसको ट्वाइस कलन या ट्वाइस फायरिंग कहते हैं, और ट्वाइस बर्निंग। पोटर्स
and some manufacturers fire ceramics wear ceramics के जो बर्तन है कितने दफा उसको करते हैं फायर करते हैं 2 दफा once to prepare it for glazing एक दफा आप उसको glazing के लिए तैयार करते हैं that is called biscuit firing और सेकंड क्या करते हैं टाइम टू मेल्ट द ग्लेज onto it कि जो ग्लेज है जो मेल्ट जो कलर्स है वो उस पे उस जिस्म पे उस बर्तन पे उस पे मेल्ट हो सके एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोस फायरिंग in this method the dried articles pass through the first that is biscuit or biscuit slow rate उसको बिस्किट और बिस्क्यू फायरिंग से आप पास करते हैं फायरिंग एट अ स्लो रेट जब आप ये फायरिंग स्लो रेट से आप अप्लाई करते हैं फॉर हालू वियर वो बर्तन जो अंदर से खाली हो खोखले हो सच एज कप्स द टोटल टाइम फ्रॉम cold through the kiln and baked to the cold is about 26 hours पूरा प्रोसेस फायरिंग वाला जो प्रोसेस है वो कितना टाइम लेता है और वापस आपको ये बर्तन तैयार होके जो मिलता है 26 आवर्स while for other article जो अंदर से खोखले न हो solids हो या थोड़े से मोटे हो that is taking 44 hours although modern kiln design is able to significantly decrease both these time तो modern kiln है जो modern furnace बने हैं उसमें ये टाइम काफी डिक्रीज हुआ है after this the glaze is applied and the wear or the burton is fired again इसके बाद क्या करते हैं बेटा जो कलर्स है जो पेंट्स है जो टेक्सचर्स है वो आप अप्लाई करते हैं इस पे और उसको दोबारा फायर करते हैं the maximum temperature in both the kiln is kept as 1170 degrees C अभी आगे कहते हैं कि to understand this process to learn this process completely it is necessary to consider what is going on or what is happening to the individual components of the materials or of the body when they are heated to this high temperature इसके बाद है बेटा glazing of the material or coloring of the material or the shape glaze is a thin layer of glass and crystals अभी glaze क्या चीज है बेटा ये कलर्स है या ग्लास है या ग्लास एंड क्रिस्टल्स के मटेरियल है इसको कोटिंग भी कह सकते हैं या कोटिंग है कोट्स and crystals that adheres to the surface of the clay body what is going क्या होता है ये surface के it provides a smooth non-absorbent surface that can be colored and texture not possible on the clay body itself इस मेथड से आप इसको वाटरप्रूफ भी इसके ऊपर आप इसी कोटिंग कर सकते हैं इसे मटेरियल आप लगा सकते हैं जिससे ये वाटरप्रूफ बन जाता है काम जनरली नहीं कर सकते हैं glazes or coatings are composed of proportions that will yield the desired property इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वेरियस ऑक्साइड से कंपाउंड्स होते हैं जो ग्लेज के जो कोटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हैं कि that yield the desired property that is कौन सा desired properties है नॉन एब्जॉर्बेंट हो वाटरप्रूफ हो स्मूथ हो और प्रॉपर कलर उसको और ड्यूरेबल उसकी ड्यूरेबिलिटी उससे बढ़ जाती है I have further explained the glazing, silica or SiO2 and boric oxide. So glazing, अभी हम कलर कैसे दे सकते हैं इसको एक दफा आपने बर्तन बना दिया अब इस पे कोटिंग कैसे कर सकते हैं कलरिंग कैसे कर सकते हैं मुख्तलिफ शेप उस पे कैसे बना सकते हैं Silica, SiO2 and boric oxide are the glass formers but oxides such as sodium oxide, potassium oxide, CaO, lead oxide and Al2O3 must be present in the stoichiometric sense. Now what is stoichiometry? It is that knowledge in which we study the chemical reaction, that how many chemical components are taking place or how many chemical compounds are taking place in the reaction to give the desired properties to that material. These include, for example, lowering the viscosity of the molten glass. जो molten glass आप glazing के लिए apply करते हैं उसकी viscosity को कम करें so that the glaze can flow smoothly over the surface of the body at the temperature at which the glaze is fired. The glaze is either applied before firing or between a first and second firing. जैसा कि मैंने आपको explain किया पहले slides में, glazes are glassy substances used to provide a smooth surface to the body
on the item, which can then be textured. You can make different textures on it, surfaced if necessary, and to color the ceramic surface. अभी आवाज ठीक है बेटा? Yes sir, अभी बिल्कुल ठीक है. यस सर. Okay. Now, what are the applications of this glaze? If a plain colored article is being produced, the glaze is either applied by dipping or spraying. आप मुख्तलिफ कलर्स में मटेरियल में उसको डिप कर सकते हैं, उसको इमर्स कर सकते हैं, so it will get the colors, और उस पे आप स्प्रे कर सकते हैं. और पैटर्न्स और डिजाइंस, the pattern is printed on, उस पे आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं on a special machine से one color at a time, एक कलर आप उस पे एक वक्त पे चढ़ा सकते हैं with a maximum of 3 colors, तीन किस्म के कलर्स आप इस पे चढ़ा सकते हैं. Some patterns are hand painted, कुछ पैटर्न्स किस चीज से बनते हैं, हाथ से आप बनाते हैं. When the glaze is applied, the articles go through a second glazing kiln, taking up to 12 hours and reaching a maximum temperature of 1050 degree. सीधे से क्यों आपको मैंने बताया था कि once firing and twice firing. Yeah, I have already explained this. Now, what are the properties of ceramics? Properties of ceramics are these have extreme hardness, having high wear and tear resistance. Extreme hardness can reduce the wear caused by the friction with other materials or with other surfaces. It has high resistance to corrosion. It is heat resistance. It has low electrical conductivity, low thermal conductivity, and low thermal expansion. Low ductility, it is very brittle. It can break or it can crack at once. Having high elastic modulus. It have low toughness. Low fracture toughness indicates the ability of a crack or flow to produce a catastrophic failure, or it can break or it can fail abruptly. It have low density. It have porosity effects properties. High strength at elevated temperature. It has very high strength at elevated temperature. Applications of ceramics, where we can have the practical applications of these ceramics. You can make clay products. You can make structural clay products from it. You can make white wares from it. बर्तन बना सकते इसे. Refractories में आप यूज कर सकते हैं. Refractories और inorganic non-metallic materials which can withstand high temperature without undergoing physical and chemical changes. Basic refractories में आप इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं और स्पेशल refractories में भी आप यूज कर सकते हैं. सीमेंट इंडस्ट्री में आप इसको यूज कर सकते हैं और एडवांस सिरामिक्स आप इससे बना सकते हैं. If you have any question, we can discuss that over here. Before going to the brick topic, if you have any question, you can ask. सर ये जो सेरामिक्स जो हम बनाते हैं सर, इसके लिए क्ले जो है स्पेशल टाइप की कोई इस्तेमाल होती है? जी बेटा, आप वो क्ले इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये पत्थर, सैंडी पार्टिकल्स ये बिल्कुल ना हो. हर किस्म के क्ले से आप ये नहीं बना सकते. जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर जी सर, ये ब्रिक को हम सिरामिक कह सकते हैं? ब्रिक्स को? यस सर. अगर आप किसी डिजाइन के स्पेशल ब्रिक बनाते किसी को तोहफा में देने के लिए, तो आप इससे ब्रिक्स भी बना सकते हैं. यस सर. सर जी सर, ये जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं सिरेमिक्स में तो वो उसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज करता है ना. इसके बाद सर जब ये हम लोग ये जो सिरामिक्स में नहीं, क्ले में. सिरामिक्स सही के है बाद सर. में. ठीक है सर. और सर फिर इसके बाद वो जो पॉट्स हमारे बन जाते हैं, जब हम उनमें पानी डालते हैं तो वो उसी तरह से हार्ड रहते हैं, वो फिर उसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं वो करते. तो ये सर ये क्यों? ये सारा बर्निंग प्रोसेस है. उनको आप इतना जलाते हैं आग में तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. ये जो फायरिंग वाला सही है प्रोसेस सर. है, आप उसको तो वैसा कच्चा नहीं छोड़ते. कच्चे में आप पानी डाल दे तो वो दोबारा मट्टी बन जाएगा. ठीक है सर. थैंक यू ये तो सर. बहुत वो कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है. इसको काफी बर्निंग के बाद ये स्टेज पे आ जाता है. ठीक है सर.
जी बेटा, एनी Thank अदर you. क्वेश्चन? सर सिरामिक्स में ये फेल्ड्सपर का क्या फंक्शन? जी बेटा, सिरामिक्स में ये फेल्ड्सपर का क्या फंक्शन? दिस इज अ मटेरियल बेटा। कहते हैं कि पहले सिर्फ क्ले से हम बनाते थे, लेकिन आजकल ये जो फेल्ड्सपर है, अगर आपको याद हो, ये हमने पढ़ा था स्टोन में, तो आजकल ये इसके साथ ये मटेरियल भी आ गया है कि ये भी उसमें मौजूद होता है। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? जी बेटा। No, sir. No, sir. Okay, so let's go to the brick topic. Yeah, I hope everybody know about the bricks. Yeah, Yes. Yes, sir. जिसको ब्रिक्स के बारे में पता ना वो मुझे बता सकता है, जिसने आज तक ईंट नहीं देखा हो, ब्रिक नहीं देखा हो। जी, एनीवन इन द क्लास? नो सर। जिसने ब्रिक नहीं देखा हो, I will give him 2 sessional marks. The introduction to bricks. Let me define the bricks. So bricks are the blocks of clay molded to suitable shapes. You have seen in the video how you can mold them to the suitable shapes and sizes while it is still in plastic condition. Dry in the sun, पहले आप उसको क्या करते हैं, सन में ड्राई करते हैं और फिर उसको बर्न करते हैं। अब डिजायर्ड, अगर आपको जरूरत हो, अदरवाइज यू कैन यूज दिस, कच्चा ब्रिक के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं इन सम प्लेसेस, so as to make them more stronger, more harder and more durable. अगर आप उसकी बर्निंग करते हैं तो बर्निंग के बाद ये काफी सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ब्रिक इज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड टू मेक वॉल्स, इससे आप दीवारें बना सकते हैं, पेवमेंट्स आप इससे बना सकते हैं, फुटपाथ वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, एंड अदर एलिमेंट्स इन मैसनरी कंस्ट्रक्शन, आप इससे बुनियादें बना सकते हैं, काफी सारी चीजें इससे आप बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, this was about introduction. Now let's talk about the history and evolution of bricks. कि कब से ये आ रहा है? Bricks are one of the oldest known building materials dating back to 7000 BC. काफी पुराने जमाने से आ रहे हैं। They were first found in southern Turkey. The first bricks were sun-dried mud bricks. पहले वो sun-dried bricks use होते थे। Fire bricks were found to be more resistant to harsher weathers conditions. जैसे कि I explained this, it will be more durable. They made them a much more reliable bricks for use in permanent buildings. Bricks now. Bricks are more commonly used in the construction of buildings. Everybody have seen this, and आपके आसपास जितने भी buildings बनते हैं, खासकर शहरों में वो bricks से बनते हैं। Brick architecture is dominant within its field. आप लोगों ने इधर पिशावर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देखी होगी, इस्लामिक कॉलेज का बिल्डिंग देखा होगा, बाकी बिल्डिंग्स देखे होंगे, तो उसमें ब्रिक आर्किटेक्चर आपको नजर आता होगा। Manufacturing of many different types of bricks having different shapes and colors. Different types of bricks आप मुख्तलिफ shapes में और color में आप बना सकते हैं। Modern machinery और earth moving equipment, powerful electric motors and modern tunnel kilns, जो भट्टियां हैं, making bricks has become much more productive and efficient and much more easier. कहते हैं जो एडवांस इक्विपमेंट आए, एडवांस मशीनरी आए, जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स है या जो मॉडर्न किल्न्स है, फर्नेस है, भट्टी है, उसकी वजह से आप ब्रिक्स बड़े आसानी से आप बना सकते हैं और मोर प्रोडक्टिव आप उसको उसकी जो प्रोडक्शन है वो उसकी प्रोडक्शन आप आसानी से इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको मोर एफिशिएंट तरीके से आप ब्रिक को बना सकते हैं, मोर इकोनॉमिकल आप बना सकते हैं इसको। Bricks can be made from variety of materials, the most common being clay. ये जो burnt clay bricks है ये आप नॉर्मली हम clay से बनाते हैं, लेकिन कैल्शियम सिलिकेट और कंक्रीट के ब्रिक्स भी आप बना सकते हैं। आजकल मार्केट में आपको कंक्रीट के ब्रिक्स भी मिल जाते हैं इसी साइज में, और कैल्शियम सिलिकेट के ब्रिक्स भी आपको मिल सकती है मार्केट में। आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर सर Yes, sir. Okay.
Now, what is calcium silicate? Calcium silicate is a white free-flowing powder. It can be derived from naturally occurring limestone or siliceous sedimentary rock. So this is about the calcium silicate. आप इसे भी ब्रिक बना सकते हैं. With clay bricks being the more popular, लेकिन लोग ज़्यादातर clay brick पसंद करते हैं क्योंकि इसको आप आसानी से इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है और बाकी प्रॉपर्टीज है वो काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर ब्रिक्स. इसका कलर एंड टेक्सचर कैसे होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स में, bricks offer natural and variety of colors including various texture. आप इस पे कर सकते हैं. स्ट्रेंथ क्या होता है इसका? bricks offer excellent high compressive strength. इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है. पोरोसिटी इसकी कितनी होती है? the ability to release and absorb moisture is one of the most important and useful properties of bricks. regulating temperatures and humidity inside the structures. ये क्या करता है कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को इनसाइड द स्ट्रक्चर जहाँ पे आप बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं उसको कंट्रोल करती है. और इसमें जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है और ये कैपेसिटी इसकी मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट है. फायर रेजिस्टेंस भी है. When prepared properly, a brick structure can give a fire protection maximum rating up to 6 hours. It can work as a fire resistant material as well. So आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको पता भी होगा स्ट्रक्चर यूजेस हम मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, सच एज फाउंडेशन बुनियाद में यूज कर सकते हैं, फाउंडेशन वॉल में और फ्लोर्स में, फर्श पे भी आप यूज कर सकते हैं. डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल यूजेस के लिए यूज कर सकते हैं. मे बी कास्ट टू फ्रॉम मोल्डिंग्स एंड अदर डेकोरेटिव फीचर्स भी आप इसके लिए भी आप कर सकते हैं. मे बी कंसील्ड बाय अदर फिनिश मटेरियल. दूसरे मटेरियल्स के अंदर भी आप उसको कंसील्ड भी कर सकते हैं. इसके ऊपर आप प्लास्टर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हैं और मे बी एक्सपोज बोथ ऑन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. और इसको आप एक्सपोज भी रख सकते हैं, प्लास्टर और पेंटिंग के बगैर भी आप इसको छोड़ सकते हैं. ब्रिक्स आर आल्सो यूज्ड इन द मेटलर्जी एंड ग्लास इंडस्ट्री फॉर लाइनिंग फर्नेसेस. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था लाइम वाले टॉपिक में कि आप फर्नेसेस में फर्नेस इंडस्ट्री जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्री में जो ग्लास इंडस्ट्री या मेटलर्जी इंडस्ट्री उसमें जो फर्नेस होते हैं उसकी लाइनिंग आप स्पेशल टाइप के ब्रिक्स से कर सकते हैं. So that they can resist more heat. Bricks have various uses, especially refractory bricks such as silica, magnesia. Refractory bricks के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं जिस तरह के सिलिका के ब्रिक्स है, मैग्नीशिया. This type of bricks must have good thermal shock resistance. इसकी जो thermal shock resistance है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. Under load, high melting point and satisfactory porosity. ये property होती है. Bricks are used for building and pavement. We have discussed this. Earlier brick pavements was found incapable of withstanding heavy traffic. कहते हैं कि पहले जो इससे जो पेवमेंट आप बनाते थे, रोड्स वगैरह बनाते थे तो वो ये ज्यादा लोड नहीं बर्दाश्त कर सकते थे. लेकिन nowadays you can make high quality bricks which can take this load. The bricks used in construction are classified as, इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं बेटा. फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हम बोलते हैं, ब्रिक बर्न ब्रिक्स और पक्का ब्रिक्स. वो ब्रिक्स जो आप उसकी फायरिंग करते हैं, भट्टी से पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड पक्का ब्रिक्स. और जो आप बगैर बर्निंग के जिस तरह सन ड्राइड करते हैं दैट इज कॉल्ड कच्चा ब्रिक्स और सन ड्राइड ब्रिक्स. इसकी 4 किस्में हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास. वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. आवाज आ रही है हारिस? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है सर. अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स और कच्चा ब्रिक्स. दीस आर ड्राइड अंडर सनलाइट. इसको सनलाइट में आप इसको ड्राई करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं. These are used for temporary and cheap construction. Temporary और cheap construction के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. These are also used for filling works. जहाँ पे आप भराई वगैरह करते हैं, फिलिंग करते हैं, उस वहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Let's talk about the fire clay bricks. So first class bricks. First class bricks की कौन कौन से properties होनी चाहिए? Made of good earth which is free from saline deposit. जहाँ पे साल्ट वगैरह होती है उस क्ले से ऐसे क्ले से आप बनाते हैं जिसमें ये सेलिन और साल्ट वगैरह नहीं होते हैं. अच्छी क्वालिटी के क्ले से इसको हम बनाते हैं. It is burned thoroughly without being vitrified. What is vitrification? It is the transformation of a substance into a glass. अगर आप बहुत ज़्यादा उसको बर्न करते हैं तो ये ग्लास शक्ल इख्तियार कर लेता है. तो आप इसको इस तरह बर्न करते हैं कि ये विट्रीफाइड कंडीशन या विट्रिफिकेशन इसकी नहीं होती है. एंड हैव डीप रेड. इसकी डीप रेड कलर होती है, चेरी एंड कॉपर कलर. डीप रेड और चेरी और कॉपर कलर इसकी होती है. द मिनिमम जो क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी होती है वो 2000 psi तक होती है.
सेकंड क्लास ब्रिक्स इससे थोड़े से कम क्वालिटी के होते हैं। दे शैल बी वेल बर्न्ड और स्लाइटली ओवर बर्न, या वेल बर्न होते हैं या स्लाइटली इसकी ओवर बर्निंग हो चुकी होती है। दे मस्ट गिव क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन यू स्ट्रक देम विद ईच अदर, तो उसकी जो साउंडिंग होगी वो क्लियर रिंगिंग साउंड होगी। दे मे हैव स्लाइट इरेगुलरिटीज इन साइज, शेप एंड कलर, इसके साइज में इरेगुलरिटीज हो सकती है, शेप में अच्छा शेप आपको नहीं मतलब जरूरी नहीं कि वो अच्छे शेप के हो, और कलर में भी इसकी थोड़ी सी फर्क आ सकती है। इसकी जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ है दैट इज अप टू 1500 psi। समझ आ रही है सबको बेटा? यस सर। थर्ड क्लास ब्रिक्स, यस सर। Yes, sir. slightly underburned or overburned, बिल्कुल उसी तरह सेकंड क्लास ब्रिक की तरह। दे आर नॉट यूनिफॉर्म इन शेप, ये भी शेप में यूनिफॉर्म नहीं होते, साइज में भी यूनिफॉर्म नहीं होते, और जो एजेस होते हैं उस भी शार्प नहीं होते। दे शैल नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 25%, ये ज्यादा 25% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अब देयर ओन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर्स इमर्शन, अगर आप ठंडे पानी में इसको डाल लेते हैं और ये 25% से ये कम पानी एब्जॉर्ब करेगा। दे हैव सम साइंस ऑफ एफ्लोरेसेंस, ये इस पे एफ्लोरेसेंस के निशानात होते हैं। आई विल शो दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज एफ्लोरेसेंस, लेट मी शो यू। दिस इज एफ्लोरेसेंस, ये आपको ये व्हाइट कलर नजर आ रहे हैं, ये सार्स टाइप के, ये बेटा ये नजर आ रहे हैं सबको? यस सर। Yes, sir. This is efflorescence. Efflorescence is a crystalline or powdery deposit of salts, often visible on the surface of the concrete or brick or natural stone surfaces. It occurs when water leaves behind salt deposits on the masonry surface. This is salt deposit on the masonry surface. तो इस किस्म के ब्रिक्स में, ये जो थर्ड क्लास के ब्रिक्स है इसमें एफ्लोरेसेंस हो सकती है, लेकिन जो पहले दो किस्म के थे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में, ये प्रॉपर्टी ये कमजोरी नहीं होती है। Because this is the weakness of this brick. The minimum crushing strength of third class bricks should be 1000 psi, pounds per square inch इसकी strength होगी। फोर्थ क्लास ब्रिक में क्या होता है बेटा? These are overburned bricks, overburned burning इसकी हो चुकी होती है, which are dark in color, color में dark होते हैं, and are irregular in size and shape, size और shape में irregular होते हैं। These are used as aggregates in concrete and for flooring, फ्लोरिंग और कंक्रीट में आपको उसको क्रश करके एग्रीगेट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। पुअर बर्न ब्रिक्स आर नॉट यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप इसको यूज न करें। द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फोर्थ क्लास ब्रिक्स शुड बी 725 psi. I have explained this efflorescence. Now manufacturing of bricks, you people have seen this in the video. First, what we are doing, we are preparing the clay or the earth, then molding of the bricks in the molds, then drying of the bricks in the sun, and then burning of the bricks in the kiln. Preparation of brick earth. Explain करो बेटा या आप लोग खुद पढ़ लेंगे? Okay, let's talk about some slides. बाकी आप लोग खुद पढ़ लेंगे। Preparation of brick earth. Remove of loose sand. Loose sand जो टॉप पे होता है उसको आप साइड पे करें, हटा दे उधर से। The top layer of loose soil about 30 centimeter depth, 1 फुट डेप्थ तक आप जो टॉप वाला मटेरियल होता है उसको हटा दे, साइड पे करें। Because it contains a lot of impurities like organic matter होते हैं, and hence it should be taken out and thrown away. उसके बाद आप क्या करें, 1 फुट के डेप्थ के बाद डिगिंग आउट करें, सॉइल को डिग आउट करें, उसकी स्प्रेड करें उसको, एंड उसकी क्लीनिंग करें। उसमें अगर कोई पार्टिकल हो या ग्रेवल्स वगैरह उसको आप उधर से साफ करें, हटा दे, या अगर कोई रूट्स वगैरह हो, जड़ें वगैरह हो। द अर्थ इज देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस अर्थ इज देन स्प्रेड इनटू हीप्स। आप उससे डेरे बनाए, अबाउट 50 to 150 सेंटीमीटर हाइट के डेर बनाए उससे, फिर उसको वेदरिंग करें उसकी। नाउ व्हाट इज वेदरिंग? द अर्थ इज देन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर फॉर सॉफ्टनिंग, ताकि कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दे ताकि इसकी सॉफ्टनिंग हो सके। द पीरियड में बी फ्रॉम फ्यू वीक्स टू अ सीजन, कुछ हफ्तों से लेके एक सीजन तक इसको छोड़ देते हैं। फिर उसकी क्या करते हैं, मिक्सिंग एंड टेम्परिंग इसकी करते हैं। द क्ले इज देन मिक्स्ड विद सुटेबल इंग्रेडिएंट्स, इट इज देन कैरिड आउट बाय टेकिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ क्ले एवरी टाइम एंड बाय टर्निंग इट अप एंड डाउन इन वर्टिकल डायरेक्शन, and then they can check it with their experience that is it ready for making the bricks or no. Here you can see this is the gathering of the raw material from the side, then you can storage of the raw materials, you can crush it if there is any lumps or delay अगर उसमें हो, फिर उसकी ग्राइंडिंग करते हैं आप, फिर उसकी स्क्रीनिंग करते हैं इसकी, और फिर पग मिल। ये आप देखिए व्हाट इज पग मिल? पग मिल और पग मिल is a machine in which clay or other materials are mixed into
a plastic state. Now, what is plastic state? Plastic state is defined as the state of the soil where it can be workable, where it can be moldable, to any shape, enough to be molded into any shape. I hope you will remember this definition. Now, molding. Molding में क्या होता है बेटा? Hand molding भी आप कर सकते हैं और machine molding भी आप कर सकते हैं. When molding is done with hand, it is called hand molding. अभी आपने देखा कि मोल्ड में वो ब्रिक्स बना रहे थे, तो that is called hand molding. A wooden rectangular mold made in the shape of a brick is normally used for this purpose. Machine molding में क्या होता है बेटा? The clay is placed in the machine. It comes out through the opening under pressure. एक खास प्रेशर के बाद ये उससे निकल आता है. It is cut to brick size में कट करते आप किसी स्टील वायर से fixed into frame. So अगर आप machine molding करते हैं तो you can make more bricks in a day as compared to the hand molding. These bricks are also called wire cut bricks भी इसको कह सकते हैं. Here you can see the hand molding. This is the mold. और इसके अंदर ये जो चीज बनी होती है इसको आप मार्का भी कह सकते हैं, लेकिन ये हम फ्राग इसको बोलते हैं. ये जो ये चीज बनती है तो फ्राग, उसमें आप मॉर्टर डालते हैं और इसकी जो शेयरिंग कैपेसिटी है, शेयर स्ट्रेंथ कैपेसिटी ऑफ द ब्रिक्स वो इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें मॉर्टर चला जाता है और दूसरे लेयर के साथ उसकी प्रॉपर बांड बन जाती है. हियर यू कैन सी दिस इज द मशीन मोल्डिंग. आप मुख्तलिफ किस्म के ब्रिक उसमें मट्टी डाल दें. ये देखें दिस वन, एंड देन फाइनली यू हैव so many bricks at a time. Drying of bricks. अभी आप लोगों ने देखा था कि सन में हम ड्राई करते हैं. Wet bricks from molding or cutting machine contains 30 to 70% moisture, depending upon the forming method. Before the fining process begins, most of this water is evaporated in dry chambers at a temperature ranging from about 100 degrees C to 400 degrees C temperature. The extent of drying time, which varies with different clays, usually in between 24 to 48 hours. Heat and humidity must be carefully regulated to avoid the cracking of the bricks. You can see this is the burning of bricks. ये मुख्तलिफ ये आपको नजर आ रहे हैं. ये नजर आ रहे हैं. This is the chimney. This is the atypical Scotch kiln. This is the section. Then you can burn the bricks. Already you people have seen in the video. You can see this one. And then over here you can see this is setting the green bricks or the fresh bricks. Then you can see the drying of fire bricks. This is the cooling side. This is the heating. This is the movable chimney. जो आपको मैंने बताया था कि this you can move this to different places. This is the preheating zone. This is the firing zone, and this is the stocking hole जो आप इसकी stocking कर सकते हैं. This is again the same thing. This is kiln with fixed chimneys. This is the burning of bricks and so on. Now the standard bricks dimensions are: the standard size of the clay brick is 9 inches by 4.5 inches into 3 inches. 9 inches the length, 4.5 is the width, and 3 is the Haris. 3 will be height, sir. Length, width, Thickness. and you can see breadth, sir. G, thickness or height. Thickness, sir. Okay, this is enough for today. There is nothing on the last slide. What is meant by this? Haris Abdullah. Okay, at the end of the day, you will have nothing. Everything will be clear like this. Yeah. And at the end of the day, you will have nothing. आप लोग पूरे मेहनत करें और साथ साथ आखिरत के लिए भी तैयारी करें. ठीक है बेटा? दुनिया के साथ साथ आखिरत के लिए भी तैयारी करें. Yes, sir. Yes, sir. Okay, if you have any question, we can discuss over here. सर ये एक था